So what we have talked about is the concept of cash book. We have talked about the concept of different subsidiary books. तो इसके पहले कि हम लोग कैश बुक के फॉर्मेट्स में जाएं, पहले हम लोग सब्सिडियरी बुक्स डिस्कस कर लेते हैं. I had asked you to complete question number 2 and question number 3, right? Yes, all. Check it out. Question number 2. Sold goods to Sudha stores of 29,000 at 10% trade discount in my sales book 2018 March 1st. Sudha stores 26,100. Correct? Purchased goods from Meddu traders 37,350 and paid the carriage of 150. Now in this case, carriage of 150 is a direct expense, but that cannot be recorded in your purchase book. जब तक आपके पास अपनी परचेज बुक में अलग से फ्रेट का कॉलम नहीं है, तब तक आप फ्रेट ये परचेज बुक में नहीं लिख सकते हो. इन दैट केस द अमाउंट ऑफ फ्रेट विल बी रिटन इन द जर्नल. द फ्रेट विल बी अकाउंटेड फॉर इन द जर्नल और इन द कैश बुक. अब यहां क्या बोला हुआ है? पेड कैरेज ऑफ 150. पेड है मतलब कैश में गया है नहीं. सो इन दिस केस, as far as the purchase ka transaction is concerned, this will get recorded in the purchase book. Whereas when it comes to the transaction related to expense, this will get recorded in cash book. Why so? क्योंकि आपके कैश बुक में सारे के सारे कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं. कल के लेक्चर में हमने सीखा था. और क्योंकि ये क्रेडिट में परचेज क्या दिया हुआ है? परचेज गुड्स फ्रॉम मेघदूत ट्रेडर्स. यहां ऐसा नहीं बोला है परचेज गुड्स फ्रॉम मेघदूत ट्रेडर्स फॉर कैश, तो इसलिए वी विल कंसीडर दिस एज क्रेडिट परचेज. और क्योंकि ये क्रेडिट परचेज है तो ये परचेज बुक में आएगा. तो परचेज बुक 2018 मार्च 3rd, मेघदूत ट्रेडर्स 37,350, नॉट 37,500. In that case, it would have got added to the asset account. But at the same time, remember a point, if the amount is paid, it won't be recorded. हाल फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं? Recording. So it won't get recorded in the journal. In that case, it will get recorded in the cash book. All payments and receipts are mandatorily recorded in the cash book only. Is it point right? Sudha stores returned goods of 3220 net, matlab after subtracting trade discount or not. So in my sales return book 2018 March 6th, Sudha stores 3220, correct or not? Cash purchases and cash sales, these will again get recorded in what? Cash book. Are we preparing the cash book? No. So for the time being, we have to ignore it. Is it point right? Jayesh invoiced goods to us as per our order on 28th of February 2018 to 27,000. हमने ऑर्डर दिया था 28 फरवरी 2018 को, पर गुड्स तो आज मिले या नहीं. इनवॉइस्ड गुड्स मतलब हमें हमारे गुड्स का परचेज इनवॉइस मिला, उसकी तरफ से सेल्स, हमारे लिए परचेज. इनवॉइस्ड टू कस्टमर मतलब सेल्स, इनवॉइस्ड टू अस मतलब परचेज. तो दिस विल गेट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक. मार्च 13, जयेश 27,000, करेक्ट. सोल्ड गुड्स वर्थ ₹33,400 टू नंदिनी एट 10% ट्रेड डिस्काउंट इन द सेल्स बुक. मार्च 17th, नंदिनी कितना आता है? 33,400 माइनस 10%, 30,060. 30060 is the value at which it is getting recorded. Is the point right? Return goods to Jayesh ₹2850 as they were defective. Return goods to मतलब sales return हुआ, sorry purchase return हुआ है नहीं. So purchase return or return outward book 2018 March 17, Jayesh 2850. Is it right?
credit purchases from Mickey Traders rupees 19,450 and they allowed a trade discount of 150. तुमने क्रेडिट परचेस कितने का किया? 19,450, पर उसमें से you have got the trade discount of 150 or not? So effectively the purchase will be recorded only for 19,300 through the purchase book, क्योंकि क्रेडिट परचेस है. परचेस बुक मार्च 22, Mickey Traders rupees 19,300. Is that right? Nandini returned the goods of 1900 gross. 1900 gross मतलब including trade discount or not? क्योंकि जब उसे हमने सेल किया था तब ट्रेड डिस्काउंट दिया था 10% का, तो अब उससे जब रिटर्न आएगा तब भी वो 10% का ट्रेड डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट किया जाएगा. Is right? So in the sales return book, March 23, Nandini rupees 1710. क्यों 1710? 1900 minus 10% का ट्रेड डिस्काउंट. Is it right? Purchased office furniture on credit from Suhani Furniture Mart. This will get recorded in journal and not in purchase book. Why? You have purchased the furniture. Furniture is your asset. Asset purchased on credit gets recorded in journal and not in your purchase book. बराबर है. नेक्स्ट, ये मैंने लिखवा के दिया था ना स्पेसिफिकली रेगुलर लेक्चर में, नॉट इन द बेसिक का लेक्चर, पर रेगुलर लेक्चर में स्पेसिफिकली लिखवाया था. परचेज ऑफ असेट ऑन क्रेडिट विल ऑलवेज गेट रिकॉर्डेड इन जर्नल एंड नॉट इन द परचेज बुक. Purchased goods from Garima stores 8,000 and sold the same to Anita at 25% profit on cost. So two transactions. पहला तुमने परचेज किया. This purchase will get recorded in purchase book. So purchase book March 29, Garima stores 8,000, and at the same time you have sold it to whom? Anita at 25% profit. मतलब ये 8,000 रुपए के ऊपर तुमने प्रॉफिट कमाया है नहीं, बिकॉज वॉट दे हैव सेड 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. तुम्हारी जो कुछ भी कॉस्ट थी उसका 25% तुम्हारा प्रॉफिट है. सो दैट मीन्स द सेलिंग प्राइस विल बिकम 10,000. प्लीज अंडरस्टैंड, इन अकाउंटेंसी वी डू नॉट डू द अकाउंटिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस. हम लोग प्रॉफिट या लॉस ये ओवरऑल बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं. इसलिए जब इस ट्रांजैक्शन को सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा तो पूरी सेल वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा, मतलब पूरे 10,000 रुपए पे. उसका प्रॉफिट अलग से एडजस्ट नहीं होगा. दैट विल बी एडजस्टेड, अकाउंटेड, वेरीफाइड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. ऑलराइट. सेल्स बुक March 29th, Anita rupees 10,000. Is it point right? Sent a debit note to Mickey Traders for rupees 3,200. Mickey Traders को हमने डेबिट नोट किस लिए भेजी होंगी? हमने उसको गुड्स वापस किए इसीलिए. 3,200 के गुड्स वापस भेजे, विल गेट रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक. मिकी ट्रेडर्स 3,200. इज द पॉइंट राइट? क्लियर सबके लिए? So this is how you get the transactions recorded. Let's discuss it for question number 3 also, and then we'll go ahead to the further one, that is the cash book का transactions. ये वाला मैं solve करता हूँ आपके लिए. लेजर पोस्टिंग भी डिस्कस करना है. ओके, पिछले वाले क्वेश्चन का पहले लेजर पोस्टिंग डिस्कस कर लेते हैं. सुधा स्टोर्स डेबिट साइड 2018 मार्च 1st, 2 सेल्स 26,100.
Meghdut Traders credit side buy purchases 37,350. 37,350. 150 will come from the cash book. हम लोग कैश बुक की पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ परचेज बुक के एंट्री, सेल्स बुक के एंट्रीज, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के बारे में बात कर रहे हैं नहीं. Sudha Stores return the goods. Sudha Stores account credit side buy sales return 3220. Jayesh account credit side buy purchases 27,000. Nandini account debit side 2 sales 30,060. Jayesh account debit side 2 purchase return 2850. है ना. Mickey Traders credit side buy purchases 19,300. Nandini account credit side buy sales return 1,710. Garima Stores account credit side buy purchases 8,000. Anita account debit side 2 sales 10,000. Mickey Traders account debit side 2 purchase return 3,200. बराबर. ये हो गई पोस्टिंग आपके इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस की. अब परचेज बुक की टोटल कितनी? हाँ, you have recorded furniture into that, you have recorded carriage into that, you have recorded cash purchases into that. भाई गधे घोड़े एक समान सिर्फ अस्तबल में रह सकते हैं, अकाउंट्स में नहीं. अकाउंट्स में कैश परचेस अलग होते हैं, परचेस ऑफ फर्नीचर, परचेस ऑफ असेट अलग होता है. हाँ या ना. तो तुम्हारा परचेस का टोटल कितना हुआ? 64,800. So in my purchase account debit side 2 trade payable 64,800. Sales account credit side buy trade receivables 66,160. Sales return account debit side 2 trade receivables 5,120. Is it right? 60. परचेज बुक की टोटल कितनी है? कितना है? 60. नहीं, मी परचेज बद्दल विचारतो. परचेज का टोटल कितना है परचेज बुक का? 64,800. मैं करता हूं, रुको मैं बताता हूं, सब्र करो. सो इट इज 37,350 का परचेज. उसके बाद में इट इज 27,000 का परचेज. उसके बाद इट इज 19,300 का परचेज. और उसके बाद 8,000 का परचेज. फिर 60 कैसे होएगा रे? 91,650. 61 कैसे आया तेरा? 64,800. मतलब तूने वो 37,500 लिया परचेज में. 37,350 है कि 500 है परचेज में? इतने से टोटल में गलती कर दी तूने. कमाल है. योर फोकस इज नॉट देयर ऑन फिगर्स एट ऑल. सच बात है. मतलब क्या हंस क्या रहे हो बे? You are going to become chartered accountant. You need to love the figures. है ना? टेन्शन क्यों नको? असं काळजी कशाला करतोस? कॅल्क्युलेटर नव्हता का तेव्हा? मग चायनावरून आणलं कॅल्क्युलेटर. तो वरचे पैसे सीतारामन मॅडमनी घेऊन घेतले टॅक्स म्हणून. ओके. परचेस अकाउंट तुझा कसं काय चुकला? परचेसचा टोटल सेल्सचा दिलं ना तू. अच्छा, ते पण त्याच्यातच इन्क्लूड केलं. फर्निचर इज एन असेट, कॅन नॉट बी इन्क्लूडेड इन द परचेज बुक. 500 लिहिलं कारण 150 इज द कॅरेज, बट दॅट 150 इज पेड बाय कॅश और नॉट. सो दॅट विल कम इन कॅश बुक.
ते तू यायच्या आधीच आम्ही डिस्कस केलं. गॉट इट नाव? हां, परचेस रिटर्न बोल. 6050 परचेस रिटर्न अकाउंट, क्रेडिट साइड, बाय ट्रेड पेएबल 6050 और सेल्स रिटर्न कितना था? 4930. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट साइड टू ट्रेड रिसीवेबल्स 4930. कर लो. चलो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. परचेज गुड्स फ्रॉम, ऐसा कंफ्यूजन होगा उल्टा, मैं वो दो स्क्रीन पे रखूं तो ज्यादा इजी है नहीं? First, so we have to prepare purchase book, sales book, purchase return and sales return. Purchase goods from Nilkamal stores 33,000, 5% trade discount, half the amount was paid immediately. अब जो half the amount paid immediately है, that will be coming in your cash book. यहाँ आप पूरा purchase record करोगे. Alright? So, if I prepare छोटा छोटा purchase book, sales book, this is my छोटा सा purchase book. As I am preparing for the sake of understanding, that's why I am preparing it छोटा छोटा. In exam, you are not supposed to prepare that in such way. So I prepared all the subsidiary books. Nilkamal stores will go into purchase book. Purchase book 2018 July 1st, Nilkamal stores. How much? 33,000 minus 5% का ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज 31,350. करेक्ट है? इनवॉइस्ड गुड्स टू, इनवॉइस्ड गुड्स टू का मतलब क्या? गुड्स सोल्ड टू, राइट? सो दैट विल कम इन योर सेल्स बुक 2018 July 3rd, Dhaval Traders 27,750. Is it right? Sonali invoiced goods of rupees 14,000 to us, 4% trade discount as per our order dated 27th of June. Invoiced goods to us means purchases or not? Sonali. और फिर भाग गई सोनाली और भाग गई ना. हाँ, 13,440. तुम्हारी क्लास का ये बड़ा अच्छा, बंदे बड़े फोकस्ड हैं, यू नो, इधर उधर की बातों पे ध्यान ही नहीं देते. रहने दो यार, मास्टर बकवास करते रहते हैं, कहाँ ध्यान दें हम लोग. हमारे पास पहले हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स कम है नहीं. सोल्ड गुड्स 30,000 ऑन क्रेडिट टू रामलाल एंड सन्स at 7% discount. Sales book July 12th, Ramlal 9 है, 9 and Sons 30,000 पे 7% का डिस्काउंट 27,900. Sent a debit note to Nilkamal stores 3,000 gross. मतलब परचेज रिटर्न कहाँ आएगा? परचेज रिटर्न बुक में. अब ये इन्होंने कहा 3,000 ग्रॉस, मतलब ऑन दैट यूल बी रिक्वायर्ड टू सब्ट्रैक्ट 5% का ट्रेड डिस्काउंट और नॉट. 2018 July 12 Nilkamal stores 3,000
-5%, that is 2850. सेंड क्रेडिट नोट टू धवल, कहाँ आएगा? सेल्स रिटर्न बुक में. (2018) July 14, धवल ट्रेडर्स. $3,550 करेक्ट है. रिसीव्ड अ क्रेडिट नोट फ्रॉम सोनाली. सोनाली तुमको क्रेडिट नोट कब भेजेगी? जब तुमने उसको गुड्स वापस भेजे होंगे तब. सो परचेज रिटर्न 1000 ग्रॉस, मतलब उस पर भी डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा या नहीं? सो जुलाई 19 सोनाली, सोलानी, सोना 1000 minus 4%, that is 960. सॉरी, जो मैं माइनस वगैरह लिख रहा हूं, थियोरेटिकली यस, प्रैक्टिकली ये सारी चीजें तुम्हारे वाउचर में आ जाती हैं, राइट. रिसीव्ड डेबिट नोट फ्रॉम रामलाल एंड सन्स, सेल्स रिटर्न. ये तुमको कैसे पता चला? उनको सेल किया था इसलिए सेल्स रिटर्न. यू शुड हैव अंडरस्टूड इट फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ डेबिट नोट क्रेडिट नोट इटसेल्फ. वो हमारा अकाउंट डेबिट कर रहा है, मतलब उसने कुछ वापस भेजे होंगे. ऑलराइट. सो जुलाई 21 रामलाल एंड सन्स, इट इज 4675 नेट, मतलब आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट इटसेल्फ और नॉट. तो हमको वापस से इसमें से 7% माइनस करने की आवश्यकता नहीं है. परचेज गुड्स फ्रॉम सुरभि स्टोर्स 15,000 एंड सोल्ड द सेम टू प्राची एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट. पहला परचेज ऑन जुलाई 24, सुरभि स्टोर्स. कितना? 15,000. और यही गुड्स 20-25% प्रॉफिट लगा के हमने बेच दिया. किसको? प्राची को. सॉरी, जुबान कट जाए ना दांत से, खतरनाक प्रॉब्लम होता है. एंड आई हैव हैड इट आफ्टर द एजेस, तो रिसेंट एक्सपीरियंस भी नहीं है. माय गॉड, कौन इतना कड़क याद कर रहा है मेरे को? हाँ, किसको बेचे? प्राची. जुलाई 24 प्राची कितने के गुड्स बेचे? 18,750. करेक्ट. परचेज गुड्स फ्रॉम ₹6,600 from Seema stores, paid carriage of 340. Paid carriage will not come in your purchase book, that will go into the cash book. So only purchase book Seema stores, Seema stores. कितना? Only 6,600, because cash payment of carriages will go into cash book. वही उसने पूछा था. अगर असेट परचेस किया तो इन दैट केस ऑल्सो इट विल गेट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ओनली. करोगे तुम डेबिट असेट को, तुम्हारे कैश बुक में नाम असेट का आएगा कैरेज की जगह, पर लिखोगे कैश बुक में ही. नेक्स्ट, प्राची रिटर्न द गुड्स एंड वी रिटर्न द गुड्स टू सुरभि. तो पहला सेल्स रिटर्न प्राची
5,000 है ना, एंड दोज गुड्स विल रिटर्न टू सुरभि स्टोर्स। अब सुरभि स्टोर्स को 5,000 रुपए थोड़ी ना वापस करेंगे, क्यों? सुरभि स्टोर से जब परचेज किया था उस पे 25% प्रॉफिट लगा के हमने प्राची को बेचा था या नहीं? तो प्राची से तो सेलिंग प्राइस पे वापस में आया है ना, बट सुरभि स्टोर्स को तो कॉस्ट में वापस करना पड़ेगा ना, है ना? सो ऑन जुलाई 27 सुरभि स्टोर्स, that is 5,000 into 100 divided by 125. Why 125? If, I'm sorry, if the cost of asset was assumed to be 100, profit on that was equal to 25 or not, at the rate of 25%. So selling price of the asset, the goods, was 125. अब तुमको जब प्राची से गुड्स वापस आए तो 5,000 में वापस आए. If 5,000 is equivalent to 125, what is equal to 100, and that comes to 4,000 rupees. तो हम लोग सोनाली को, सॉरी, सुरभि स्टोर्स को जब गुड्स वापस करेंगे तो वो कौन सी प्राइस पे करेंगे? 4,000 रुपए पे, 5,000 रुपए पे नहीं. Did you understand the logic of that? You have the sales return at selling price, but the purchase return have to be recorded at cost price. Did you get that? मैंने क्यों -25% नहीं किया? क्योंकि आपने प्रॉफिट ये सेलिंग प्राइस पे कंसिडर नहीं किया था, प्रॉफिट आपने कॉस्ट प्राइस पे कंसिडर किया था. यही प्रॉफिट अगर सेलिंग प्राइस पे कंसिडर हुआ होता तो आई वुड हैव सिंपली डन -25%. करेक्ट? सो दिस कम्स टू 4,000 rupees. Correct? And finally, purchase furniture for office use will be coming into your journal and not in the either of the subsidiary books. Did you people understand? वो प्रॉफिट वाला कंसेप्ट समझ में आया? Profit can be added on cost or it can also be added on selling price. अगर प्रॉफिट ये कॉस्ट प्राइस पे ऐड किया जाता है, in that case you assume 100 as cost price. प्रॉफिट अगर सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, in that case assume selling price is 100. जिसके साथ प्रॉफिट का संबंध जोड़ा गया है उस पर्टिकुलर आइटम को 100 अज्यूम करो. अगर कॉस्ट के साथ प्रॉफिट को जोड़ा गया है तो अज्यूम कॉस्ट एज 100. अगर सेलिंग प्राइस को के साथ उसका संबंध जोड़ा गया है तो अज्यूम सेलिंग प्राइस एज 100. करेक्ट? सो माय टोटल ऑफ ऑल द सब्सिडियरी बुक्स, परचेज बुक 31, 44, 49, 59, 65, 66, 390. करेक्ट है? 27, 54, 18 चौक 72, 73, 500, 74, 400. बराबर है? 4, 7 हजार 7,810. Is it right? 5, 9, 12, 13, 225. करेक्ट है? Did you people understand this? नहीं, टोटल कैसे मारते हैं वो नहीं, कैसे बनाते हैं वो समझ में आया क्या? हाँ, पर यहां पे जर्नल बनाने को बोला ही नहीं है. टू भरत फर्नीचर्स, क्योंकि क्रेडिट पे है. हाँ, और फर्नीचर के अकाउंट में टू भरत लिखेंगे. क्या? नहीं, नहीं. जैसे कल की टेस्ट में पूछा गया था, अ बिजनेस हु प्रिपेयर्स परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, फॉर देम प्रिपेयर द जर्नल. नहीं, कैश बुक पूछा था. थर्ड वाला क्वेश्चन था ना, सेकंड क्वेश्चन था.
नहीं, जब तक पूछा ना हो तब तक नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कल का क्वेश्चन 2 था। एक मिनट रुको, ये बहुत बड़ा पेपर आ गया मेरे सामने, तुम्हारा वाला पेपर देखने दो मेरे को। ये कैश बुक का क्वेश्चन था। हाँ, पहला वाला क्वेश्चन 1 was what from the following transactions for the month of April 2018 prepare the journal proper of Jindal and Company, a sari dealer who also maintains purchase book, sales book, purchase return and sales return, cash book। इसमें बाकी सारे सब्सिडियरी बुक नहीं बनाने थे, हमें सिर्फ जर्नल बनाना था जिसमें सिर्फ जर्नल एंट्रीज आएगी। वो मतलब परचेज के ट्रांजैक्शन आपके परचेज बुक में जाएंगे, सेल्स के ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में जाएंगे, कैश बुक के ट्रांजैक्शन कैश बुक में जाएंगे। उसके अलावा जो ट्रांजैक्शन बच रहे थे सिर्फ उनके लिए एंट्री करनी थी। अगर आपने परचेज बुक सेल्स बुक, कल के टेस्ट में, रेगुलर बैच की बात कर रहा हूँ, बेसिक अकाउंट में नहीं, अगर आपने सारे सब्सिडियरी गुनाए हैं तो आपके आधे मार्क गए सही होने के बावजूद, राइट? क्वेश्चन को ठीक से न पढ़ने की वजह से। गौरवी बोलेगी मैं बच गई, कल तूने टेस्ट नहीं लिखी ना? हाँ, बच ही गई ना डायरेक्ट। हाँ हाँ, वो तो उस पर आता हूँ ना मैं। हाँ, गुड नहीं किया, अच्छा हुआ नहीं किया, क्योंकि यहाँ जो बैठे थे वो बहुत ज़्यादा वाट लगी उनकी। दे हैड अ काइंड ऑफ फीलिंग कि मास्टर पहली टेस्ट सिंपल पूछेगा, आसान पूछेगा। अबे का हलवा है कि उठाए ओवन में रखे, गरम किए और खा लिए। नहीं, वो तो अब सब बताऊंगा बाद में, अब रुक जाओ। हाँ, ओके, इसका पोस्टिंग सीख ले, पहले समझ ले, मतलब सीखा तो मतलब तुमको आता है अच्छी तरह से। अकाउंट्स बनाए तुम लोगों ने? नहीं बनाए होंगे तो बना लो फटाफट। प्रिपेयर इट, फोल्ड द पेज एंड स्टार्ट, बाद में तुम वो हेडिंग लाइनिंग करते रहना। विल फिनिश दिस एंड कैश बुक का प्रॉब्लम अपन कल सॉल्व करेंगे अभी, क्योंकि आज सब्सिडी बुक तो कॉन्फिडेंस आ गया। अब ये चारों सब्सिडी बुक पे कॉन्फिडेंस आ गया। अब रहा, हाँ वही किसे करवा रहा हूँ ना, इसलिए करवा रहा हूँ ना, इसलिए वो प्रॉब्लम ना जाए इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ ना। आज वो क्यों नहीं आई? क्या नाम क्या उसका? वंश, हाँ वैष्णवी नहीं, और वो तो तीसरी जीत जो थी वो तो आई नहीं थी ना शुरू से। देयर वर 3 गर्ल्स ना। चलाए। पहला परचेज बुक का पोस्टिंग क्या? इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस टू द क्रेडिट एंड टोटल टू द डेबिट। सो नीलकमल स्टोर्स क्रेडिट साइड 2018 July 1st, by purchases 31,350, Sonali account credit side 2018 July 4th, by purchases 13,440, I'm sorry, 13,440. Surbhi stores credit side 2018 July 24th,
Buy purchases 15,000. Seema stores account credit side 2018 March 25th. Buy purchases 6,600. ये हो गया इसका एक पोस्टिंग इफेक्ट क्रेडिट वाला. डेबिट वाला कहां होगा? परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में. सो परचेस अकाउंट डेबिट साइड 2018 जुलाई 31st being the month end. To trade payables 66,390. To trade payables 66,390. ये हो गया आपका पोस्टिंग परचेज बुक का. अब सेल्स बुक का पोस्टिंग इफेक्ट्स क्या है? एक एक ट्रांजैक्शन रिस्पेक्टिव कस्टमर के डेबिट साइड में और टोटल सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में. सो धवल ट्रेडर्स डेबिट साइड 2018 जुलाई 3rd टू सेल्स 27,750 बराबर है. रामलाल एंड सन्स डेबिट साइड 2018 जुलाई 9 टू सेल्स 27,900. प्राची अकाउंट डेबिट साइड 2018 जुलाई 24th टू सेल्स 18,750 बराबर है सारे. ये हो गया आपका डेबिट का पोस्टिंग इफेक्ट. साथ ही साथ तुमको सेल्स को क्रेडिट भी करना पड़ेगा या नहीं. सो वी विल गो टू द क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट. वहां इंडिविजुअली लिखने के बजाय हम लोग क्या करेंगे? टोटल लिखेंगे. ऑन द क्रेडिट साइड बाय ट्रेड रिसीवेबल्स सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय ट्रेड रिसीवेबल्स 74,400 बराबर है. परचेस रिटर्न बुक का पोस्टिंग क्या? इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस टू द डेबिट ऑफ रिस्पेक्टिव अकाउंट एंड टोटल टू द क्रेडिट ऑफ परचेस रिटर्न अकाउंट और नॉट. तो पहले नीलकमल स्टोर्स ऑलरेडी है हमारे पास, वापस से बनाने की आवश्यकता नहीं है. सो नीलकमल स्टोर्स डेबिट साइड 2018 जुलाई 12 टू परचेस रिटर्न 2850. सोनाली का अकाउंट भी पहले से है या नहीं हमारे पास? है ना. सो सोनाली अकाउंट डेबिट साइड 2018 जुलाई 19 2018 जुलाई 19 टू परचेस रिटर्न 960. टू परचेस रिटर्न 960. सुरभि स्टोर्स अकाउंट डेबिट साइड 2018 जुलाई 27 टू परचेस रिटर्न 4,000. और इन सब की टोटल विल डायरेक्टली गो टू परचेस रिटर्न अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड 2018 जुलाई 31st बाय ट्रेड पेबल्स 7810. बाय ट्रेड पेबल्स 7810 करेक्ट है क्या? लास्ट रह गया हमारा सेल्स रिटर्न बुक. सेल्स रिटर्न बुक की पोस्टिंग क्या? इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन टू द क्रेडिट ऑफ रिस्पेक्टिव कस्टमर और नॉट एंड टोटल टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट. तो लेट्स गो टू धवल ट्रेडर्स. ऑलरेडी है हमारे पास अकाउंट. ऑन टू द क्रेडिट साइड 2018 जुलाई 14 टू सेल्स रिटर्न 3550. I'm sorry, buy sales return 3550.
Ramlal and Sons account, credit side, 2018, July 21st. Buy sales return, 4675. Prachi account, credit side, 2018, July 27. Buy sales return, 5000. And now sales return account, debit side, the last effect. Sales return account, debit side, 2 trade payables, receivables. 2018, July 31st, 2 trade receivables, 13,225. समझ आया? समझा क्या तेरे को? अभी एक एक ट्रांजैक्शन की अगर पोस्टिंग करोगे, एक एक ही ट्रांजैक्शन पे फोकस करोगे, तो तुम्हारे आंसर कभी गलत नहीं होने वाले. हम लोग क्या करते हैं ना, इन होलसम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. होना चाहिए, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट वो होलसम के लिए स्टेप बाय स्टेप जाना इज मोर बेटर. एटॉमिक हैबिट्स, यू नो, स्मॉल हैबिट्स will bring the larger effects. All right, focus on that. The next part, that is cash book, in tomorrow's lecture. Very important lecture for tomorrow then. Cash book again at 8 a.m. tomorrow. Thank you.